بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ مجھے تلاش ہے قبلہ اول کی، مجھے تلاش ہے مسجد اقصی کی۔ جب بھی قبلہ اول کی بات ہوتی ہے یا مسجد اقصی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے وہ گولڈن رنگ کا گنبد آ جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے۔ نیٹ پہ ریسرچ کریں تو وہ آ جاتا ہے، ٹی وی پر جب بات ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے گولڈن رنگ کا گنبد، جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ تو پھر قبلہ اول کیا ہوا؟ کیا وہ قبلہ اول ہے؟ تو میں پہلے بھی تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، یہ جو نماز کی سنت متعین کرنے کے حوالے سے، کہ ہم جیسا کہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بعد میں یہ تبدیل ہوا۔ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب، بے قراری، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو مدینہ شریف میں تھے، تو عین دوران نماز وحی نازل ہو گئی۔ دوران نماز ہی، عصر کی نماز کہتے ہیں کہ دوران نماز ہی قبلہ تبدیل کر لیا گیا۔ میرا خیال یہ شاید پہلی وحی ہے، ایک ہی وحی ہے جو دوران نماز آئی ہے۔ تو وہاں سے وہ مسجد بھی بن گئی، قبلہ تین اس کو کہتے ہیں، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، سب لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قبلہ تین کی کہانی۔ مگر حقیقت دیکھا جائے، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو یہ کہانی ایسے بنتی نہیں ہے۔ قرآن یہ بڑی کتنی واضح آیت ہے 96 سورۃ آل عمران کی، کہ جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ یہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے۔ مجھے اس بات پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کتنی واضح بات ہوتی ہے قرآن کی، مگر مانتے نہیں ہیں ہم اسے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، مانتے نہیں ہیں۔ ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ یا کسی نے نشاندہی کر دی کہ یہ ہے جی قبلہ اول خانہ کعبہ، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ پھر ہم کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ غلط ہے، وہ ہماری کتابوں میں غلط آ گیا ہے؟ یہ بات کیوں نہیں ہم کہتے، کیوں نہیں کر دیتے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر کیا ایمان ہے ہمارا قرآن پر؟ کیسا ایمان ہے؟ ہم اس کو کیسے الہامی کتاب مانتے ہیں یا آخری کتاب مانتے ہیں جب اس کی بات کو ہی نہیں ہم نے ماننا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں قبلہ پھر کوئی اس کا جواز کوئی صحیح طریقے سے دیا نہیں جاتا۔ قبلہ بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز کا پڑھنا، اگر کو صحیح طریقے سے مطمئن کر دیں کہ ادھر کیوں کر کے نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیا قبلہ تھا اس میں؟ لفظ ہم عربی میں یہ بیت المقدس ہے، تو ادھر بیت اللہ ہے۔ لفظ ہم پلہ بولنے میں یہ لگتے ہیں ایک جیسے، بیت المقدس اور بیت اللہ، جبکہ یہ بہت مختلف چیز ہے۔ جب ہم بیت اللہ کہتے ہیں تو یہ مکعب نما مربع نما کمرہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو مکہ کے اندر ہے، یہ آتا ہے۔ لیکن جب بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، وہاں تو کوئی ایسا کمرہ گھر نہیں ہے جس کی وجہ سے لیکن کیا کہیں گے بیت المقدس مطلب شہر کا نام ہے، یروشلم اس کا نام ہے اور بیت المقدس بھی اس کا نام ہے۔ عبرانی زبان میں اس کو یروشلم کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، پورے شہر کو۔ یہاں سے یہ بات بھی ذرا دیکھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا یا بے قراری کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے، قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔
ये इसका कोई तरीका ही नहीं, सलीका ही नहीं बनता। बैतुल मकदस एक शहर है। अगर ये कहा जाता कि बैतुल मकदस की बजाय मक्का को किबला बना दिया जाए तो चले, बात बन गई कि वो भी एक शहर है बैतुल मकदस, और ये मक्का भी एक शहर है, ये बन गया। तो फिर वो ऐसा तो नहीं है। बैतुल मकदस शहर है, बैतुल्लाह एक कमरा है, घर है, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, आपके जद्द अमजद जो, उन्होंने तामीर किया अल्लाह के हुक्म से। तो फिर मेरे भाइयों, फिर ये क्या बात बनी? उसको किबला अव्वल फिर कैसे बना लिया हमने? अच्छा, चले जी, बैतुल मकदस है, वो बैतुल मकदस क्यों है? उसकी तकदीस किस वजह से है? उसकी तकदीस मेरे भाइयों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल की वजह से। दाऊद अलैहिस्सलाम कह ले, उनका जो कमरा था उसमें ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। वो हैकल है, यहूदी उसको हैकल कहते हैं। वो उसकी तकदीस की, तकद्दस की वजह वो है हैकल सुलेमानी। वो उसके वहां फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी होती है। तो वो पहले का है, यरूशलेम आपकी पैदाइश से पहले का है, इसलिए फिर वो हैकल ही बना। उसकी तकदीस, बैतुल मकदस की तकदीस का सबब वो हैकल ही बना। तो हैकल सुलेमानी, तो ये कैसे हो सकता था कि ये काबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और तमाम अंबिया कराम इसके वारस रहे, तो अलियत उनके पास रही, वो यहाँ आए रहे, जो करीब करीब के अंबिया कराम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अबुल अंबिया कहा जाता है। तो उससे पहले इसकी मुकद्दस होना अरबों के यहाँ बिल्कुल सबको पता था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इस बात का इल्म था। फिर आप पर जब नमाज ये 10 नबवी में जब ये आखिर मिराज पर तशरीफ ले गए, तो उस वक्त ये फ़र्ज हुई। ये भी बड़ी अजीब बात है। अब फ़र्ज हुई तो फिर रुख का कोई तयन नहीं उस रवायत में, उन बातों में, उन कहानियों में कहीं भी नहीं कि अल्लाह ने कहा हो कि आपने किस तरह मुंह करके नमाज पढ़नी है, कोई भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपने ही खुद ही उसका तयन फरमाया। तो खुद तयन फरमाया तो फिर बार बार मदीने में जाकर इस चीज़ का इल्तिजा करनी अल्लाह से कि इसको किबला बना दिया जाए, ये बात भी समझ में नहीं आने वाली। तो किबला उसको किबला बना लेना, ये बात नहीं समझ आती, बिल्कुल नहीं आती, और है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं। ये आप देख लें, फिर सारी कहानी जो बनाई हुई है, कितनी रवायात हैं इस पर बनाई गई। या मिराज पर गए आपने, वहाँ बैतुल मकदस के बारे में लोगों ने सवाल किया, आपने खिड़कियाँ और दरवाजे उसके सारा कुछ बता दिया। क्या बता दिया? हैकल सुलेमानी के कमरा जो था, जो कमरा, उसकी खिड़कियां दरवाजे बताए आपने। फिर क्या बताया? क्या है रवायत वो? कितने बयान करते हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत परेशान हूँ इस मामले में। मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्या बना दिया है। ये जो गुंबद जो नजर आता है हमें गोल्डन रंग का, ये तो सन 1972 हिजरी में ये तामीर किया, बनु उमैया ने तामीर किया है। उस वक्त गालबन ये सलमान था और उसका आगे जानशीन खलीद वलीद है। 72 हिजरी में ये इसको तामीर किया। और सखरा कहते ही चट्टान को है, ये यहाँ था हैकल सुलेमानी। ये यहूदियों का दावा बिल्कुल दुरुस्त है। ये जब वो कहते हैं कि ये हमारे हैकल को इन्होंने मिटाकर, ढाकर, गिरा कर ये मस्जिद बना दी है, तो ये उनका दावा दुरुस्त है, सीधी सी बात है। ये चूंकि इसका नाम गुंबद सखरा, इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं, किसी को भी इख्तलाफ नहीं कि गुंबद सखरा इसका नाम है। और सखरा कहते चट्टान को, और इस चट्टान पर वो कमरा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल था, इबादत करने की जगह थी, तो ये उनकी जगह थी। इस पर हमने ये गुंबद बनाया। गुंबद ना जाने उस वक्त इस नज़र से बनाया, इसको हिफाजत देने के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनके दौर में ये यरूशलेम फतह हुआ, बैतुल मकदस फतह हुआ,
तो ये यहूदियों और ईसाइयों का आपस में बहुत झगड़ा था, तो इन्होंने इसको एक तरह से गंदगी, कूड़ा करकट फेंकने की जगह बना रखा था नफरत की वजह से। तो आपने आकर इसकी यहाँ आकर सफाई की, इसको साफ किया और यहाँ किबला रुख मुतय्यन किया। लेकिन देखें, अब ये बात भी बड़ी अहम है कि आप जब आए तो आपने नमाज कहाँ अदा की? अगर मस्जिद अक्सा उस वक्त थी इधर, तो सीधी सी बात होती, कहीं है जिक्र कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी? अब कहीं भी नहीं है। नमाज का वक्त हुआ, जो उस वक्त चर्च था, जो उसका पादरी था बड़ा, तो उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये अर्ज की थी कि आप हमारे चर्च में नमाज पढ़ लें। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने वजह बताई कि ऐसा ना हो कल मुसलमान इसको गिरा कर मस्जिद बना लें और ये नया फसाद खड़ा हो जाए। इतना जहां दीदा हुक्मरान ऐसे कैसे कर सकता था कि वो इनकी जगह पर पढ़ लेता नमाज, हैकल की जगह पर नहीं? ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ। और आपकी नमाज का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आपने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। अब मेरा दूसरा सवाल भी यही है ना कि किबले की तलाश है, किबला अव्वल क्या है और मस्जिद अक्सा क्या है? अगर उस वक्त मस्जिद अक्सा होती है तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में, उस वक्त वहां तब वहां नमाज पढ़ लेते। कोई सबूत नहीं है, मेरी नजर से कोई नहीं गुजरा। अगर किसी को कोई पता हो तो बता दे कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए, जो उनकी कहानी जो बयान करते हैं, हम गए वहां बिल्कुल, तो आपने नमाज कहाँ पढ़ी? क्या हो सकता था कि आप मस्जिद अक्सा को छोड़कर कहीं और नमाज पढ़? मस्जिद अक्सा की इतनी फजीलत जिस तरह बयान की जाती है, हमको नहीं पता था कि आपको मेराज हुई है और आपने यहाँ अंबिया कराम की इमामत फरमाई है और मैं इसमें नमाज पढ़ूं? कितनी फजीलत फजीलत वाली बात है। तो मेरे भाइयों, किधर जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बात को समझते नहीं। अच्छा, अब जो मसला है देखें, अब वहाँ खैर यहूदियों और मुसलमानों की आपस में नफरत, कुदूरत, दुश्मनी ये तो चलती आ रही है, चली आ रही है। और इससे शदीद तर दुश्मनी अरबों और यहूदियों के दरमियान आपस में है। अब यहूदियों की जो दुश्मनी है उसका सारे का सारा जो जोर निकलता है, नफरत निकलती है, वो बेचारे फलस्तीनियों पर निकलती है। तो वो तख्ता मुश्क जो बने हुए हैं उधर, ये इस वजह से बने हुए हैं, फलस्तीनी बेचारे बने हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे या कहते हैं या बंदा सोचता भी है कि यार तुम्हें पता है, वो अरबी हैं, उनको नहीं पता। तो मेरे भाई, मैं आपके सामने सारी बात रख दी है, मस्जिद किबला तैन की बात रख दी है, अरबों ने बनाई है। ये जो सऊदी अरब वाले हैं, इन्होंने ही वो मस्जिद बनाई है। अब भी है, सब कुछ है, उसी तरह उसको मानते हैं, करते हैं। तो वो उधर भी का किबला भी वो भी मानते हैं, कहते हैं काबे के अंदर भी जो मस्जिदुल हराम है, इसमें भी उन्होंने उसका रुख बताया गया है, निशान ज़दा किया हुआ है उसको कि इस तरफ है ये जो किबला अव्वल था। किबला अव्वल कहाँ था? अब देख ले मेरे भाइयों, मैं बस यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि अगर आपको पता है कि बिलावल की कोई तस्वीर है या नेट पर है या मस्जिद अक्सा की कोई है, तो आप बता दें, दिखा दें। नहीं है, ये कितनी वाज़ेह बात है कुरान की, वो आल इमरान की 96 नंबर आयत में नहीं मानते। अब ये अरबी भी नहीं मानते, क्या किया जाए इसका? हम कह देते हैं ना कि अरब लोग हैं जी, आपको क्या पता, आलम जानते हैं। बेशक आलम जानते हैं, आलमों के उनके पास बहुत इल्म है। मेरे जैसा बंदा ने क्या करना, क्या क्या उसका इल्म होना, लेकिन बंदा सोच तो सोचता है ना। एक चीज सामने आती है, इन्हीं लोगों के तर्जमे किए हुए हम पढ़ते हैं, उससे हट का तर्जमा आप किसी जगह पढ़ लें, किसी कुरान में पढ़ लें, तो वो यही कहती है कि किबला अव्वल जो है वो ये बैतुल्ला है जो मक्का में है। लेकिन नहीं, हम अड़े हुए हैं, नहीं किबला अव्वल हमारा वो है, वहां क्या है, हैकल सुलेमानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब हैकल सुलेमानी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अफजलुल अंबिया हैं, हम कहते हैं सरदारुल अंबिया हैं, बेशक हैं, आपकी फजीलत बहुत है, कोई शक नहीं है इसमें। आपका इलाका पूरी कायनात है और आपका पीरियड तक क़यामत तक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्या बात बनती है? जिस वो किबला तो वही था आपके पास, तो नमाज आपने अगर पढ़ी तो इसी तरफ पढ़ी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर असरार साहब भी कहते हैं कि जी पहले दोनों किबले थे,
वो आप किस तरह दोनों क़िबले बन सकते हैं। आप ज़रा ज्योमेट्री को अगर जानते हो, 3 नुक्तों को आपस में मिलाना हो तो आप किस तरह मिला सकते हैं, वो एक सीध में किस तरह हो सकते हैं। क्या तीनों तीसरा जो नमाज है मुसल्लीन है, और एक ये काबा हो गया या जो मक्का में है, और दूसरे उस किबला को भी हमने एक लाइन में रखना है, तो किस तरह फिजिबल ये हो जाएगा, किस तरह पॉसिबल ये हो सकता है। तो मैं बस मेरे भाइयों आपके सामने यही बात रखना चाहता था। दिन ब दिन नई नई चीज़ें सामने आती हैं, लोग भी बातें करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मैं भी अर्ज कर दूं, शायद कोई रहनुमाई इसमें कोई मिल जाए। तो हम जो इतना बड़ा अजाब है फ़लस्तीनियों पर टूटा हुआ, इसके बारे में दिल दुखता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ये मसला हल हो जाए कि ये जो गुंबद सखरा है ये यहूदियों को दे दिया जाए, जो उनका बनता है, ये उनके लिए मुकद्दस तरीन जगह है। यहाँ ये कोई वो घोड़े नहीं बांध देंगे, यहाँ ये कुछ नहीं, मुमकिन है कि इसको गिरा के वो अपनी सतह का अपनी तरह का कोई बना लें इसको, लेकिन ये उसको ये तो नहीं करेंगे कि इसकी कोई हुर्मत पर घर पर आएगा, वो क्योंकि ये उनके लिए मुकद्दस तरीन जगह है, ये कमी है। और शायद इस तरह कोई मसला ये फ़लस्तीनियों पर जो अजाब बना हुआ है इसराइल, वो शायद कम हो जाए, या ये कुछ मसला इस तरह हल हो जाए। तो पता नहीं हम क्यों नहीं इसको होने देते, या हम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि हाँ यार ये बातें जो आई हैं ये गलत हैं हमारी किताबों में, और ये जो कुरान की बात कह रहा है, कुरान कह रहा है ये बात दुरुस्त है। ये किबला अव्वल जो है वो यही है मक्का में, जो खाना काबा जिसे हम बोलते हैं, बैतुल्ला जिसे बोलते हैं। तो बस मेरे भाइयों, बार बार बात करने का मकसद बात वही है, करनी भी पड़ती है ज़हन नशीन कराने के लिए। तो बस मैं यही आपके सामने गुजारिश करना चाहता था कि ये किबला अव्वल क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है। मुद्दा मेरा है कि फ़लस्तीनियों पर जो अजाब टूटा है, ये टूट रहा है, हर रोज़ टूटता है। हम बहुत जा रहे हैं गहराई की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब शाम का मसला है, आप कुछ बहुत खुश हो रहे हैं कि वहाँ जी अलवियों की हुकूमत सी, शियों की हुकूमत सी ख़त्म होगी। अब जो आगे है वो क्या है मेरे भाइयों, वो भी उसी तरह के ही जालिम हैं जिस तरह का असद जालिम था। बेशक वो बहुत जालिम आदमी था। अब उसके जो किस्से सामने आ रहे हैं, जो उसके जेलों से बंदे बरामद हो रहे हैं, डिक्टेटर ऐसे ही होते हैं, सारे ऐसे, कदाफी भी ऐसा था, सद्दाम भी ऐसा था, ये भी ऐसा बहुत जालिम आदमी था। ये अकलियत में थे, थोड़े से वहाँ सुन्नियों की अक्सरियत है, दूसरों की जो अब है उसकी कहानियां सुने तो पता चलता है। अमेरिका की शय है, अब सुन रहे हैं इसराइल के टैंक दमिश्क के इर्द गिर्द हैं, इसराइल क्यों खुश है। बहरहाल वो लंबी बात है, लंबी कहानी है। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता था आपके सामने, काश हम कुछ तस्लीम कर ले अपनी गलतियों को, मान लें कि ये चीज़ें गलत हो गई हैं, ये गलत आ गया है, हमारे हमारे यहाँ रवाज पा गया है चीज़ें फलां फलां, तो मान लेनी चाहिए कुरान को सामने रखकर। बस मैं ये बात अर्ज करना चाहता था। कुरान को हमें मरकजी नुक्ता मानना पड़ेगा। जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं पेपर पर, जब भी कुछ आपको करना, तो मरकजी नुक्ता आपको एक बनाना पड़ता है, उसके बगैर डायग्राम नहीं बनते। तो वो मरकजी नुक्ता मेरे नज़दीक कुरान है। कुरान को मरकजी नुक्ता मानकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगी। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।